بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو ملکی معیشتوں اور ان کی باہمی کارکردگی بالخصوص زر مبادلہ اور بین الاقوامی قرضہ جات پر نظر رکھتا ہے، جبکہ ان کی معاشی فلاح اور مالی خسارے پر قابو پانے کے لیے قرضے اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ IMF 190 رکن ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ کورونا وائرس جیسی خطرناک وبا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دنیا کے طبی حالات ہی بدل دیے۔ ایسا وائرس کہاں سے آیا اور کس نے بنایا؟ چین نے ایک رپورٹ میں سب راز فشاں کر دیے ہیں۔ چین نے ایک نئی حکومتی رپورٹ جاری کی ہے جس میں امریکہ سے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ کووڈ-19 وائرس کا اصل ماخذ ہے۔ شہر قائد کراچی میں ہیوی ٹریفک حادثات کا سلسلہ تاحال نہ تھم سکا۔ گزشتہ رات شہر کراچی کے 3 مختلف علاقوں میں ہونے والے خوفناک ٹریفک حادثات میں کم از کم 4 افراد جان بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ بینس کالونی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں ایک تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان منیب اور شایان موقع پر جان بحق ہو گئے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ باقاعدگی سے ٹیکس ریٹرن جمع کراتا ہے اور ان کی تنخواہوں سے براہ راست ٹیکس کٹوتی ہوتی ہے، مگر یہ طبقہ پھر بھی پاکستان میں بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ ٹیکس دینے کے باوجود ان پر ٹیکس کی شرح بڑھائی جا رہی ہے اور مزید دستیاب سہولتیں ختم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی بروقت اور مستعد کارروائی کے باعث بھارتی فضائیہ کے جدید رائفل جنگی طیارے بھوکلاہٹ کا شکار ہو کر اپنی فضائی حدود میں واپس فرار ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 29 اور 30 اپریل کی شب بھارتی فضائیہ کے 4 رائفل طیاروں نے بھارتی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے مقبوضہ جموں کشمیر میں پیٹرولنگ کی۔ تاہم جیسے ہی پاکستان ایئر فورس کے ریڈارز نے ان طیاروں کی موجودگی محسوس کی، فوری طور پر رد عمل دیتے ہوئے اپنی ایئر فورس کو متحرک کر دیا۔ پاکستانی طیاروں کی فوری موجودگی اور مؤثر رد عمل نے بھارتی رائفل طیاروں کو ہراساں کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ بغیر کسی مداخلت کے واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی مسلح افواج ہر قسم کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے اطراف بھارتی افواج کی غیر معمولی نقل و حرکت مقبوضہ کشمیر کی سرحدی دیہات کو حالی کروایا گیا۔ آبادی اور پہلگام فالس فلیگ جیسے اقدامات اس بات کا اشارہ ہیں کہ بھارت ایک بار پھر کسی ممکنہ مہم جوئی کی تیاری میں ہے۔ مودی سرکار کے زیر اثر بھارتی میڈیا اور فوجی قیادت خطے میں کشیدگی کو ہوا دے رہی ہے۔ مستند انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق بھارت کسی بھی وقت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ پاکستانی مسلح افواج نے واضح کر دیا ہے کہ سیاچین سے لے کر بحیرہ عرب تک وطن عزیز کا دفاع ہر قیمت پر کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس جدید جنگی ساز و سامان، تربیت یافتہ افواج اور عوام کی مکمل حمایت حاصل ہے، جو دشمن کو کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے لیس ہے، بلکہ عوام کی مکمل حمایت انہیں ایک ناقابل تسخیر قوت بنا دیتی ہے۔ بھارت کی کسی بھی مہم کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور وطن عزیز کی خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ایک عالمی مالیاتی ادارہ ہے جو ملکی معیشتوں اور ان کی باہمی کارکردگی بالخصوص زر مبادلہ اور بین الاقوامی قرضہ جات پر نظر رکھتا ہے، جبکہ ان کی معاشی فلاح اور مالی خسارے پر قابو پانے کے لیے قرضے اور تکنیکی معاونت فراہم کرتا ہے۔ IMF 190 رکن ممالک پر مشتمل ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ یہ سب مل کر عالمی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ IMF کا قیام 1944 میں ہوا تھا، جبکہ پاکستان 11 جولائی 1950 کو IMF کا رکن بنا تھا۔ یہ ادارہ جنگ عظیم دوم کے بعد برٹن ووڈز کے معاہدے کے تحت بین الاقوامی تجارت اور مالی لین دین کے ثالثی کے لیے دسمبر 1945 میں قائم ہوا۔ اس کا مرکزی دفتر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں ہے۔ اس وقت دنیا کے 185 ممالک اس کے رکن ہیں۔ شمالی کوریا، کیوبا اور کچھ دوسرے چھوٹے ممالک کے علاوہ تمام ممالک اس کے ارکان میں شامل ہیں۔ کوئی بھی ملک تقاضے پورے کر کے اس میں شمولیت کی درخواست دے سکتا ہے۔ ان تقاضوں میں معیشت سے متعلق معلومات اور کوٹا سبسکرپشن کہلائی جانے والی واجب الادا رقم شامل ہے۔ سبسکرپشن کے لیے جو ملک جتنا امیر ہوتا ہے اسے اتنے زیادہ پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ کسی معیشت کی نگرانی اور اس کی حمایت کے لیے IMF 3 کام کرتا ہے۔ معاشی اور مالی معاملات کی ٹریکنگ، یہ دیکھتا ہے کہ ایک ملک کی کارکردگی کیسی ہے اور اسے کن خطرات کا سامنا ہے۔ کرسٹالینا جورجیوا IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ وہ اس سے قبل عالمی بینک کے چیف ایگزیکٹو تھیں، جنہوں نے IMF میں کرسٹینا لیگارڈ کی جگہ لی، جو اب مرکزی یورپین بینک کی صدر ہیں۔ کرسٹالینا جورجیوا بلغاریہ سے تعلق رکھنے والی IMF سربراہ ہیں، جو یورپی یونین کا سب سے غریب ملک ہے۔
है। IMF के आगाज के बाद से अमूमी तौर पर इदारे का सरबराह यूरोपी होता है, जबकि आलमी बैंक की सदारत अमरीकी शहरी के पास रहती है। 2019 में बतौर IMF सरबराह अपनी पहली सालाना कॉन्फ्रेंस से कबल क्रिस्टाना जॉर्जिया ने खबरदार किया था कि ब्रेक्सिट यूरोप और बरतानिया दोनों के लिए तकलीफ देह हो सकता है। IMF सन 1944 में अमेरिका में होने वाले ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के नतीजे में वजूद में आया था। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से दूसरी आलमी जंग के दौरान 44 ममालिक ने शिरकत की थी, जिनमें बरतानिया, अमेरिका और सोवियत यूनियन शामिल थे। इस कॉन्फ्रेंस में आलमी मुआशी मामलात के साथ साथ एक मुस्तहकम एक्सचेंज रेट का निजाम बनाने और जंग से मुतासिरा यूरोपीय ममालिक की मईशत को बहाल करने पर बातचीत हुई थी। इन मकासद को पूरा करने के लिए आलमी बैंक और IMF मार्जे वजूद में आए। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक वबा जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और दुनिया के तिब्बी हालात ही बदल दिए। ऐसा वायरस कहां से आया और किसने बनाया, चीन ने एक रिपोर्ट में सब राज फशा कर दिए हैं। चीन ने एक नई हुकूमती रिपोर्ट जारी की है जिसमें अमेरिका से मुतालिक कहा गया है कि वो कोविड-19 वायरस का असल माखिज है। ये इल्जाम ऐसे वक्त में सामने आया जब गुज़िश्ता माह अमरीकी हुकूमत ने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसमें चीन के खिलाफ लिखा गया था कि वुहान में किसी लैब से मुतालिक वाकया आलमी वबा का सबसे मुमकिन सबब है। 18 अप्रैल को व्हाइट हाउस में एक नई कोविड-19 वेबसाइट जारी की गई जिसमें कहा गया कि गेन ऑफ फंक्शन तहकीक से मुतालिक कोई लैब का वाकया कोविड-19 के सबसे मुमकिन माखिज के तौर पर सामने आता है। इस सफ़े पर साबिक सदर जो बाइडन, साबिक सेहत के मशीर एथोपनी फॉन्सी और आलमी सेहत तंजीम WHO पर वबा के इब्तदाई मराहल में गलतियों की तनकीद की गई थी। चीनी रिपोर्ट में हकाम ने दावा किया है कि इस हवाले से काफी सबूत मौजूद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि कोविड-19 का आगाज मुमकिन तौर पर अमेरिका में हुआ, जो कि 2019 के आखिर में चीन के शहर वुहान में दरियाफ्त होने से कबल था। रिपोर्ट में अमेरिका पर इल्जाम लगाया कि वो इल्जाम तराशी करने की कोशिश कर रहा है और वाशिंगटन से कहा गया है कि वो गूंगे और बहरे बनने का बहाना बंद करें। रिपोर्ट में चीन ने मजीद कहा कि अमेरिका ने कोरोना के मामले को सालों तक सियासत का हिस्सा बनाया है और कहा गया है कि कोरोना शदीद अमेरिका में चीन के फैलने से कबल शुरू हुआ था। चीनी हकाम ने $24 बिलियन के मुकदमे का हवाला दिया जो मेजोरी में दायर किया गया था, जिसमें चीन पर जाती हिफाजती सामान जमा करने और वबा को छुपाने का इल्जाम लगाया गया था। चीन का कहना है कि अब आलमी सतह पर वायरस के माखज का पता लगाने की कोशिशों का मराकज अमेरिका होना चाहिए। चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन के एक बयान के मुताबिक कोरोना फैलने की हकीकत का पता लगाने के अगले मरहले में अमेरिका पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाहदार तबका बाकायदगी से टैक्स रिटर्न जमा कराता है और उनकी तनख्वाहों से बराह रास्त टैक्स कटौती होती है, मगर ये तबका फिर भी पाकिस्तान में बुनियादी सहूलियात से महरूम है। टैक्स देने के बावजूद इन पर टैक्स की शरह बढ़ाई जा रही है और मजीद दस्तयाब सहूलतें खत्म की जा रही हैं। हुकूमती नुमाइंदे फिर भी ये जवाब पेश करते हैं कि दीगर शोबों से मुनासिब टैक्स वसूली न होने की वजह से तनख्वाहदार तबके पर इन्हिसार करना मजबूरी है। ताहम ये अमल मईशत को गैर रस्मी बनाने और टैक्स नेट से बाहर रहने की हौसला अफजाई करता है। हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक रवा माली साल में तनख्वाहदार तबके से टैक्स वसूली में 55% इजाफा मुतवक्के है, जो कि पिछले साल के 368 अरब रुपए के मुकाबले में नमाया इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए जरूरी है कि टैक्स से मुस्तस्ना आमदनी की हद 6 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 12 लाख की जाए। महंगाई के हिसाब से टैक्स सेल्स में सालाना तब्दीली की जाए। 35% फ्लैट टैक्स से पहले मजीद दरमियानी सेल्स मुतारिफ करवाई जाए ताकि शरह बतदरीज बढ़े। दूसरी टैक्स स्कीम का नफाज किया जाए। बच्चों की तालीम, घर के किराए, हेल्थ केयर, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह पर कटौती की इजाजत दी जाए। टैक्स रिटर्न बर वक्त जमा कराने वालों के लिए इनामात का ऐलान किया जाए। रिफंड्स का आसान और खुदकार अमल तश्कील दिया जाए। तनख्वाहदार तबका पाकिस्तान के सबसे ज्यादा दस्तावेजी और टैक्स देने वाले तबकों में से है। इन पर इजाफी बोझ डालकर दरअसल हुकूमत ईमानदारी की हौसला शक्नी कर रही है और मिशत को गैर रस्मी बनाने की राह हमवार कर रही है। अब वक्त आ गया है कि इंसाफ और मसावात को महज असूलों के तौर पर इस्तेमाल नहीं बल्कि अमली तौर पर भी नाफिज किया जाए। आज़ाद भारत की तारीख में सन 1971 के भारत पाकिस्तान शिमला मुआहदा को अहम मुकाम हासिल है। बरतानवी दौरे हुकूमत में तारीखी शहर शिमला भारत का मौसम गर्मा का दारुल हुकूमत था। आज़ादी के बाद भी शिमला शहर की अहमियत बहुत ज्यादा रही। इसका सबूत शिमला मुआहदा है। 1971 की जंग के दौरान जब भारत को 2 टुकड़ों में तकसीम किया गया था तो भारत की वजीर आजम आयरन लेडी इंदिरा गांधी थी। इसके बाद पाकिस्तान के सरबराह जुल्फकार अली भुट्टो के साथ शिमला मुआहदा हुआ। शिमला के राजभवन में इस मुआहदे पर दस्तखत हुए वो आज भी लोगों के तजस्सुस का मरकज है। हिमाचल राजभवन की इमारत का नाम बार्नीस कोट है। अब इसे राजभवन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इंदिरा और भुट्टो के माबैन शिमला मुआहदा हुआ था। भारत और पाकिस्तान के माबैन शिमला मुआहदा रात
12:40 पर हुआ था। सन 1971 में जंग हारने के बाद जब पाकिस्तान के सरबराह जुल्फकार अली भुट्टो को ये एहसास हो गया कि अब उन्हें मुल्क में शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को मुज़ाकरात और मुआहदा का पैगाम भेजा। भारत ने भी इस मामले को आगे बढ़ाया और 1972 में 28 जून और 2 जुलाई के दरमियान शिमला में सरबराही इजलास तय हुआ। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को मुकम्मल रियासत हासिल हुई। 1.5 साल के बाद हिमाचल को ये एजाज हासिल हुआ कि इसकी सरजमीन पर एक तारीखी मुआहदा हुआ। शिमला मुआहदे के अहम नुकात ये हैं। पुरअमन हल। दोनों ममालिक ने तनाज़ात को 2 तरफ़ा मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर इत्तफाक किया, जिसमें किसी तीसरी पार्टी को शामिल नहीं किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल। जम्मू कश्मीर में जंग बंदी की लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल के तौर पर दोबारा बयान किया गया, जिसे यकतरफा तौर पर तब्दील न करने का दोनों फरीकों ने। कैदियों की रिहाई। भारत ने पाकिस्तानी जंगी कैदियों को रिहा करने पर इत्तफाक किया, जबकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने और ताल्लुकात मामूल पर लाने का वादा किया। इन दफात का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान देरपा अमन और बाहमी एहतराम की बुनियाद रखना था। गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला रुकने की बजाय मजीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जहां ताज़ा ड्रोन हमले के नतीजे में 5 मासूम बच्चे शहीद हो गए। गैर मुल्की खबरी इदारे के मुताबिक आज सुबह से जारी इसराइली हमलों में अब तक मजमूई तौर पर 44 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से सिर्फ गजा ही नहीं बल्कि लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत को भी निशाना बनाया गया है, जहां इसराइली तैयारों ने शदीद बमबारी की है और इस वहशियाना कार्रवाई के दौरान इसराइली फौज ने गजा में अपने मजीद 2 फौजी अफसरों की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी जानिब आलमी अदालत इंसाफ में गजा में इंसानी इमदाद की बंदिश के खिलाफ मुकदमे की समाअत जारी है। फलस्तीनी सफीर ने अदालत को बताया कि इसराइली इमदादी अशिया को एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गजा के शहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन हो गई है। इधर हिजबुल्लाह के रहनुमा नईम कासिम ने लबनानी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अमेरिका के जरिए इसराइल को कंट्रोल करे ताकि खित्ते में मजीद तबाही से बचा जा सके। अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने यमन में अमरीकी हमलों के नतीजे में शहरी हलाकतों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और तमाम फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है।